Thank you, Pastor, for that wonderful introduction. और मैं पास्टर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अद्भुत एक परिचय के लिए मेरे। And I'm so glad to be in your midst. और मैं आप सबके बीच में यहाँ होकर बहुत खुश हूँ आज, Seeing your faces and also experiencing the presence of the Lord in our midst. और आप सबके चेहरों को देखकर और उस परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस कर कर God is doing a work in our midst. परमेश्वर एक कार्य को करता है हमारे बीच में। When we look around, there are people just walking up. When we walk around the streets, we see people whose faces are down and they have nothing to hold on to. और जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, जब मैं बाहर सड़कों पर लोगों को चलते हुए देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनके चेहरे एकदम लटके हुए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो पकड़ के रख सकें, या कोई एक ऐसी ठोस चीज़ नहीं है उनके जीवन में। But we are a people whom God has chosen and we have something to hold on to. परंतु हम वह लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, और हमारे पास उसको पकड़ने का एक रास्ता, एक जरिया है। Can we look to the Lord in prayer? आइए हम परमेश्वर को प्रार्थना में देखें। Father, we thank you for this wonderful day that you have given us. Thank you, Lord, for enabling us to come together and worship you, O Lord. Lord, as we look to your word, Lord, would you guide us, O Lord? Keep us in you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the work that you have done in our midst, O Lord, and we continue to look to you, Lord Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen. You all know that the theme that I've chosen for, or the Lord has given in my heart, is living a life of hope. और हम सबको शायद अभी तक पता है कि जो आज का मेरा शीर्षक होने वाला है, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पे डाला है, वह है कि एक जीवन जीना आशा से भरा हुआ। But what is hope actually? परंतु आशा है क्या सचमुच में? When we look at the world, people always use this word hope in different aspects, in different levels. जब हम देखते हैं वचन पे, तो लोग अलग अलग नजरिए से, अलग अलग परिभाषाओं से आशा को देखते हैं। It's mostly a desire of something good that is happening in the future. और यह इसको अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर एक हमारी इच्छा होती है, या हमारी एक इच्छा होती है जो कि भविष्य में कुछ अच्छा हो हमारे साथ। Nobody hopes for a disaster. कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शायद किसी दुर्घटना की आशा लगाए बैठे हो। We all desire that. हम सब इसको चाहते हैं, हमारे अंदर इसकी इच्छा होती है। But whenever we use this word hope, there always we express uncertainty. और पर जब भी हम इस शब्द आशा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा एक ऐसी बात होती है जो शायद पूरी तरह संपूर्ण ना हो, या पूरी तरह से पक्की ना हो। Yeah, when we say we sometimes say like this, I hope there will be no rains today. और कई बार हम इस बात को कहते हैं कि मैं आशा रखता हूँ कि आज शायद बारिश ना हो। As we were coming back, all of us forgot to take our umbrellas, and my daughter was telling, hope so it won't rain. और अभी जब हम आ रहे थे, हम सब अपने छाते घर पर भूल गए, तो मेरी जो बेटी है उन्होंने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि आज शायद बारिश ना हो। There's an uncertainty. We don't know whether it will rain or not. यहाँ पर जो है एक बहुत ही असमंजस वाली बात है, हमें नहीं पता कि क्या आज बारिश हो या शायद ना हो। I hope Daddy gets home early. और मैं आशा रखती हूँ कि वो चीज़ जल्दी से ठीक हो जाए। Now, Daddy gets back home early. और मैं आशा रखती हूँ कि पिताजी जो है वो घर जल्दी आए आज। I hope this person finishes the sermon early. और मैं आशा रखता हूँ या रखती हूँ कि यह व्यक्ति जल्दी से अपना प्रचार खत्म कर दे। These are all when we say there's this uncertainty, don't know whether he'll take the next 2 hours or
if it rains, or all these things. It's all about uncertainty. और यह सारी बातें ऐसी हैं जिनमें उनकी संपूर्ण होने की कोई पुष्टि नहीं है। हम इस बात की आशा रख सकते हैं, हम सोच सकते हैं शायद ये होगा या शायद ये नहीं होगा। But the biblical understanding of hope is not about uncertainty. परंतु जो बाइबल की जो समझ है आशा को लेकर, वह इस बारे में नहीं है कि शायद हो या ना हो। Even it is not just a desire of something good that might happen. और यहाँ तक कि ये बात भी नहीं है कि हमारी इच्छा है कि कुछ अच्छा हो जाए, But it is a confident expectation and a desire that something good that we have already received is going to happen. आमीन। परंतु यह एक उस बात की पुष्टि है जिसमें हम भरोसा रखते हैं संपूर्ण रूप से कि एक अच्छी चीज जो हमारे लिए हो चुकी है वह आगे हमें मिलेगी। And when we hope in the Lord, it is an expectation that what He has said, what we have received will come to pass. और जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं या इस बात की पुष्टि होती है कि हाँ जो भी हमने मांगा है या जो भी हम चाहते हैं वह हो चुका है हमारे लिए। It's a moral certainty that we receive from the Lord. और यह एक सर्टेनिटी है, यह एक पुष्टि है हर एक बात की जो हमारे लिए परमेश्वर करता है। A moral certainty that is dependent on a moral God, a God who is good. और एक मॉरल सर्टेनिटी मतलब जो एक ऐसे परमेश्वर पर, एक सिद्धांतों के परमेश्वर पर स्थित है जो उन सब बातों को अपने सिद्धांतों के अनुसार पूरा करेगा। Let me explain it a little more clearly from our lives. और मैं हमारे जीवन के जरिए इस बात को थोड़ा और आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। I have a strong certainty, moral certainty that Tina, my wife, and we are going to stay married to each other until we are alive. और इसका उदाहरण ये होगा कि मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास भरोसा रखता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ जो टीना है वह जब तक हम जीवित हैं तब तक हम शादीशुदा होंगे। The other way we can say, the world says like this: I hope that there will not be any divorce between us. और जो दूसरे दृष्टिकोण से, जो संसार का दृष्टिकोण जिसे हम इसको देख सकते हैं वह यह है कि संसार इस बात को कहते हैं कि हम आशा रखते हैं कि शायद हमारा जो डिवोर्स है वह ना हो। See, you understand what I'm saying about the certainty that we will stay together is not because of us. आप इस बात को समझे कि मैं इस बात की जो पुष्टि कर रहा हूं कि हाँ हम दोनों साथ रहेंगे, यह हम दोनों की वजह से नहीं है। It's almost 22 years that we have been married together. और यह आज शायद 22 साल हो गए हैं हम दोनों को कि हम दोनों की शादी को। And there were many instances that we would have separated. और वहां पर शायद बहुत ऐसी घटनाएं थी जहां हम शायद अलग हो चुके होते। But we are still together, not because we decided to stay together, but the Lord has kept us together. और परंतु हम एक साथ हैं अभी तक, इसलिए नहीं क्योंकि हमने एक साथ रहना ठाना हो, परंतु परमेश्वर ने उस बात को हमारे लिए रखा था। The promises of God concerning us are so big that it is not limited to us. और जो वाचाएं परमेश्वर को हमारे बारे में लेकर वो इतनी बड़ी हैं कि यह बात अब हम दोनों के बारे में नहीं रही। And it is upon Him who brought us together and on the promises that He has for us. और यह अब उसकी इच्छा है जिसने हमें एक साथ जोड़ा और वो वाचाएं जो हम दोनों को एक साथ दी हैं। That is the hope that we have in Him. और वह जो है हमारी असली आशा है जो हम दोनों के बीच में है इस शादी में। Let us turn to Romans chapter 4 verse 18 and 19. आए हम रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 18 और 19वीं आयत को देखें। Against all hope, Abraham in hope believed,
and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offering be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. If somebody can read it in Hindi loudly. I don't have the scripture right now. Okay, wait. It was Romans 4 verse 18 and 19. रोमियो 4 उसका 18 और 19 जो इस बात को कहता है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा हो, वह बहुत सी ज्योतियों का पिता हो। 19वीं आयत, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। See, when we look at this verse, we see Abraham in hope believed. और जब हम इस आयत को देखते हैं, हम देखते हैं कि अब्राहम ने आशा में विश्वास रखा। That's this faith and hope combined together. जो है कि विश्वास और आशा जो है एक साथ जुड़ गई हैं, वहां पर मिली हुई हैं। Something that is beyond his comprehension. कोई एक ऐसी चीज जो उसकी समझ से परे है या उसकी समझ से बढ़कर है। In the life of Abraham and Sarah, you see that this could not happen, but God promised and they hold on to it. और अगर हम अब्राहम और सारा के जीवन को देखें तो यह चीज नहीं हो सकती थी, परंतु उन लोगों ने परमेश्वर की उस आशा पर को पकड़े रखा, थामे रहा। And as a result of them believing, they received a word from the Lord and they believed on it and they continued to hope for that. और इसका जो एक परिणाम रहा कि उन्होंने परमेश्वर से एक वाचा को पाया, उस पर विश्वास किया, उसे थामे रहा और उसको आगे जाकर and they received what they were promised with. आगे जाकर उन्होंने पाया उस बात को जिसकी उनसे वाचा की गई थी। So we understand that from the worldly perspective of hope is you don't have anything to hold on. और जो आशा का संसारिक नजरिया है वह यह है कि तुम्हारे पास कुछ भी ठोस चीज नहीं है जिसको तुम पकड़ सकते हो। It's about uncertainty about in your future. और यह इस बारे में है कि शायद तुम्हारा भविष्य में ऐसा हो या शायद वैसा हो या ना हो कुछ भी। Expecting that to happen. और उस बात की अपेक्षा रखना कि वह हो। But for us, there is something behind us already telling what is going to happen. परंतु हमारे लिए वह आशा जो है वह एक ऐसी चीज है जो पहले से हमारे लिए हो चुकी है, बस हमें उसे आगे पाना है। And that is combined with faith. और वह आशा के साथ जोड़ी जाती है। With faith. विश्वास के साथ। Yeah. So that makes it is, we are not thinking out what is going to happen. और यह हमें इस बारे में बताती है कि हम सोचते नहीं है कि क्या होने वाला है, but we believe on the God who has said it. परंतु हम विश्वास करते हैं उस परमेश्वर पर जो सिद्ध है। Okay, God has said it, but why hope? हाँ, परमेश्वर ने कह दिया, परंतु अब क्यों आशा रखें उस बात पर? What is our hope based on? क्या हमारी आशा जो है किस बात पर निर्भर होती है? And it's a very, very, very simple answer. और इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब है। 2 Thessalonians दूसरा थिस्सलुनीकियों chapter 2 verse 16 and 17. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word.
16वीं आयत, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। Where have we this good hope? From the, yeah. कहाँ से आती है यह अच्छी आशा, उत्तम आशा? Very simple answer here. बहुत ही साधारण सा जवाब है यहाँ पर, The grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से। See, it portrays this, when we look in the previous verses, we can see the steps of our salvation that we can see in the earlier verses also. और अगर हम इस थिस्सलुनीके की किताब को और ऊपर पढ़ें, इससे पहले की आयतें पढ़ें, तो वहां पर हम देखते हैं कि कैसे उद्धार के बारे में, उद्धार की सीढ़ियों के बारे में वहां पर लिखा गया है कि कैसे उद्धार तक पहुंचा जा सकता है। So from verse 13, can you just read verse 13? और मैं 13वीं आयत आपके बीच में पढ़ूंगा, जो कहती है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। So all the processes of our salvation is very clearly expressed here. और हमारे उद्धार की सारी जो जरूरतें हैं वह बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखी गई हैं। We were chosen, हमें चुना गया, we were called, हमें बुलाया गया, sanctified, हमें पवित्र किया गया, made to believe the truth, और हमें उस विश्वास पर हमें उस सच्चाई पर विश्वास दिलाया गया, and obtaining the so that obtaining the glory of God. और सत्य की प्रतीति करके हमें उद्धार दिया गया। And all of this by the grace of God. और यह सब कुछ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ। And that is what exactly in verse 16 it tells. The grace that has given, by the grace He gave us eternal encouragement and good hope. और वही बात हमें 16वीं आयत में बताती है कि जो शांति और अनुग्रह यहाँ पे लिखा रखा है, और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। See, God is the one who has initiated this process. और आप देखिए कि परमेश्वर ही वह है जिसने इस कार्य की शुरुआत की, स्थापना की। We didn't choose him. हमने उसे नहीं चुना। We would have never thought of coming to his presence. और हमने शायद कभी भी नहीं सोचा होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। But he foreknew that I should be in him. Each one of us sitting here to be in him. और परंतु वह उस बात को सोचता था, उस बात को जानता था कि हमें उसमें होने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर बैठा है, हम सबको परमेश्वर में होने की जरूरत थी। He chose me. उसने हमें चुना। He called me. उसने मुझे बुलाया। He sanctified me. उसने मुझे पवित्र किया। He caused me to believe the truth. उसने मुझे उस सच्चाई पर विश्वास दिया, उस सच्चाई पर प्रतीति करवाया। And now I am enjoying the grace of God. और अब मैं उसके अनुग्रह का लुत्फ उठा रहा हूँ। What a privilege we have. क्या अनुग्रह हमारे ऊपर है, कितना एक सौभाग्य हमारे लिए है। See, when we were all sinners, we had this feeling, how am I able to come to this holy God? और जब हम सब पापी थे, हम इस बात को महसूस कर पाते थे कि कैसे मैं इस पवित्र परमेश्वर के पास आ सकता हूँ। I cannot come to His presence. मैं उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकता हूँ। He will not forgive my sins. वह मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा। And nobody will accept me. कोई मुझे नहीं अपनाएगा। But He loved me with an eternal love. परंतु उसने मुझे प्रेम रखा है एक अनंत काल के प्रेम से। Can you just, if you unpack that itself, it's beyond our imagination, beyond our comprehension. अगर आप इसी बात पर ध्यान दें, इसी बात को थोड़ा और खोले, तो यह हमारी समझ से परे है, हमारी समझ में समा नहीं सकता। Just the love itself, सिर्फ वह प्रेम जो है,
it's too much for me to handle. वह मेरे लिए बहुत ज्यादा है कि मैं उसे संभाल नहीं पाता हूँ। And he's telling it's the eternal love. और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि नहीं, ये तो अनंत काल का प्रेम है। He has started loving me from eternity, उसने मुझसे प्रेम रखना शुरू किया उस अनंत काल से, and it will continue till eternity. और वह अनंत काल तक चलेगा। Can anybody explain that? क्या कोई इस बात को समझा सकता है? It's too much. यह बहुत ज्यादा है। And he has called us his children. और उसने हमें अपना बेटा या बेटी होने का अधिकार दिया। All the blessings in Christ Jesus. और सारी वह आशीष दी यीशु मसीह में। What a loving God we serve. कितना एक प्रेमी परमेश्वर की हम सेवा करते Can we हैं। say hallelujah to क्या our हम Lord? हालेलुया कह सकते हैं? He is so good. What? We can't just limit even to that word hallelujah. और वह इतना भला है कि हम सिर्फ हालेलुया तक भी उसे सीमित नहीं कर सकते। Our lives should be outpouring of this love that God has poured in our lives. और यहाँ हमारा जीवन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो उंडेल रहा हो उस प्रेम को जो परमेश्वर ने इसमें भरा है। God has just started work in us. और परमेश्वर ने सिर्फ शुरू किया है अभी हमारे अंदर कार्य करना। How many years have we been in the Lord? हम में से कितने लोग यहाँ परमेश्वर में हैं? Max, I have come to the Lord, maybe now it's my 35 years walking in the Lord. और ये शायद मेरे लिए मेरा 35वां वर्ष है कि मैं परमेश्वर में चल रहा हूँ। And I've never experienced that his hand is short all these years. और मैंने कभी इस बात को नहीं देखा कि उसका जो हाथ है वह छोटा हो गया हो मेरी मदद के लिए। He had been always good to me. वह हमेशा मेरे लिए भला रहा He है। has provided for me beyond what I could think and imagine. और उसने मेरे लिए मुहैया करवाया उन सब बातों के परे जो मैं सोच सकता था। And God is still continuing to work in me. और परमेश्वर अभी भी मुझ में कार्य कर रहा है। My wife is sitting here. मेरी बीवी यहाँ पर बैठी हुई है। She can tell how I was when we got married. और वह बता सकती है कि कैसा मनुष्य मैं था जब हमारी शादी हुई थी। And the changes that God has brought in my life. और जो बदलाव जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में लेके आए हैं। And just one experience, I'm not telling after our marriage, when I first came to the Lord. और मैं अपनी पूरी शादी की बात की कहानी नहीं, परंतु एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम परमेश्वर में आए, जब मैं परमेश्वर में आया, I was in my 10th class. मैं अपनी 10वीं कक्षा में था। And it was during the vacation that I came to the Lord in a fuller sense. और छुट्टियों के दौरान, 10वीं कक्षा की छुट्टियों के दौरान मैं परमेश्वर में आया। And after the vacations, I went back to receive my results. और अब इन छुट्टियों के बाद जब मैं वापस गया और अपने परिणाम रिजल्ट्स को पाया, my friends started telling to me, "What happened to you?" और मेरे जो दोस्त थे वो मुझे कहने लगे, अरे तुम्हें क्या हो गया एकदम? The reason is because whenever I used to speak, only bad words used to come from my mouth, and then only I used to speak. कि जो उसकी वजह यह थी कि जब भी मैं बोलता था पहले तो मेरे मुंह से गलत शब्द ही निकला करते थे। पहले गालियां निकला करती थी पहले, और उसके बाद मैं आगे की बात करता था। And nothing of that sort was coming from my mouth. परंतु अब ऐसा कुछ भी मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। And I didn't notice it. मैंने इस बात को नहीं देखा, but my friends noticed because I had to keep my mouth shut before my teachers because that's what used to come out of my mouth. और क्योंकि मुझे अपने मुंह को बंद रखना पड़ता था अपने टीचर्स के सामने, क्योंकि वही शब्द वो बाहर आते थे जब भी मैं बोलता था। But then the change was inside out. परंतु फिर जो बदलाव था वह अंदर से बाहर को था। And I never have that. I don't even remember some of the words that I used to speak. और अब मुझे तो कुछ वह शब्द याद भी नहीं है कि मैं क्या क्या उस समय पे बोलता था। That is the change that God brings in our lives. और यह एक ऐसा बदलाव है जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। God is so good to us. परमेश्वर कितना भला है हम सब के लिए। The purpose why God is doing in us is so wonderful. और जो वजह है कि क्यों परमेश्वर हमारे अंदर इन सब कार्यों को करता है वह अद्भुत है। 1 Peter 1 verse 3. पहला पत्रस उसका 1 और उसकी 3री आयत। Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope
through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवन की आशा के लिए नया जन्म दिया। What is the goal of God in the work of regeneration in our life? और क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर ने जो ये नया कार्य हमारे जीवन में किया, It is to create in our heart a living hope. और वह यह है कि उसने हमारे हृदय में एक जीवित आशा बनाई, And we are born into this living hope. और अब हम इस नई आशा में, इस जीवित आशा में हमने जन्म लिया है। And we didn't do it. We were born by the work of the Lord. और हमने ये नहीं किया, परंतु हमने जन्म लिया है परमेश्वर के कार्य के द्वारा। If somebody calls you and asks you, how do you know you are born? और कोई अगर आपको बुलाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता तुम्हारा जन्म हुआ है, What would you do? आप क्या करेंगे? Would you run for your birth certificate or Aadhaar card? What would you do? क्या आप क्या करें? आप शायद अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भागेंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएं उस व्यक्ति को। You will normally ask your parents. आप जाएंगे अपने माता पिता से पूछेंगे, And they have told you your date of birth and when you were born, what was the situations, all these they have told you. और वह फिर आपको बताएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, किस दिन आप पैदा हुए थे, कैसी उस टाइम पे परिस्थितियां थी जब आप पैदा हुए थे। And you know you are alive. How do you know that? और कैसे आपको पता होता है कि आप जीवित हैं? कैसे? I see, I hear, I feel, I breathe, I talk. That's why I know I am alive. मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। इन सब बातों से मुझे पता है कि मैं जीवित हूँ। See, the same way I am alive in Christ and I know the life that is in me, and by that I can say I am alive in Christ. और ऐसे ही मुझे पता है कि मैं मसीह में जीवित हूँ। वह जीवन जो मसीह ने मुझे दिया है उसमें मैं जीवित हूँ। And even if I have some confusions, I can run back to my Father and ask, tell me, and He will tell me from His word how I was born and how I am living. और अगर मेरे अंदर कोई भी असमंजस या कोई भी परेशानी हो, किसी बात पे मुझे शक हो, तो मैं वापस जाके अपने पिता से पूछ सकता हूँ कि पिता मुझे आप बताएं, और वह मुझे अपने जीवित वचन से बताएगा मेरे बारे में। And that is, we are born into a living hope. आमीन। और यह है कि हम एक जीवित आशा में हमारा जन्म हुआ है। We are not walking in uncertainty. हम एक शायद से भरे हुए जीवन में नहीं जी रहे हैं। See, our situations around are all about uncertainty. हमारी सारी परिस्थितियां जो हमारे आसपास हैं वह इन सब बातों से हैं कि जो किसी बात में शायद पूरी ना हो पाए। Dehradun was so beautiful, देहरादून बहुत खूबसूरत था, but it's not that beautiful now. परंतु अब वह इतना खूबसूरत नहीं रहा। We hope that it will be good in the future. और हम आशा रखते हैं कि वह भविष्य में जाकर और खूबसूरत हो। But that hope is quite different from what we hope. और परंतु वह आशा उस आशा से बहुत अलग है जिसके बारे में हम आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं। The mountains are moving. We don't know what's the future for us. और जो पहाड़ है वो हिल रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। What is the economic situation? We don't know. और क्या आर्थिक स्थिति रहने वाली है, हमें नहीं पता है। What is the next government? Which government is going to come? We don't know. और क्या अगली गवर्नमेंट होने वाली है, कौन सी पार्टी आने वाली है, हमें इस बारे में नहीं पता है। But these are all uncertainties before us. और यह वह सारे संदेह या शक हैं जो हमारे आगे हैं अभी। But our hope is quite different. परंतु हमारी जो आशा है वह बहुत अलग है। See, we are surrounded by uncertainties all around. और हम इस संदेह से घिरे हुए हैं, हमारे चारों ओर शक भरा हुआ है। But we have a hope that we have from the Lord. परंतु हमारे अंदर एक आशा है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। Even of having all this, do we not doubt? परंतु इन सब के होने के बावजूद भी क्या हम शक नहीं करते हैं? Anybody here?
कोई है यहाँ पर? Do you doubt? क्या आप शक करते हैं? Can I see hands? क्या मैं हाथ देख सकता हूँ? I thought I was the only person who doubts. और मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही एक शकी व्यक्ति हूँ. See, that's why we have the word of God. We can keep on hoping on the Lord who has given us this living hope. और इसीलिए हम हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा एक परमेश्वर है जो हमें बार बार आशा से भरता है. And it is very clearly mentioned in the word also. और ये बहुत स्पष्ट रूप से वचन में इसके बारे में लिखा भी गया है. Romans 15 verse 14. रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत. 15:4. Got one 10 verses ahead. I went. 15 verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the scriptures we might have hope. और रोमियो उसका 15 उसकी 4थी आयत जो इस बात को कहती है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें. The word was written for our instruction, जो वचन है वह लिखा गया हमारी अगुवाई के लिए, to give steadfastness and encouragement, कि हमें धीरज और प्रोत्साहन दिया जाए, and to sustain our hope. और हमारी आशा को बढ़ाए रखे. See, this is the word that we have. और एक ऐसा वचन आज हमारे पास है. Anytime you feel that your hope is wavering or your faith is wavering, run back to the word. और किसी भी क्षण जब आपको लगे कि आपकी आशा, आपका विश्वास जो है डगमगा रहा है, आप वचन की ओर मुड़े. That is given to sustain our hope. और वह दिया गया है हमारी आशा को हमेशा तक रखने के लिए. But what is our hope actually? परंतु क्या है हमारी आशा सचमुच में? See, when we talk about hope, it is about something in the future. और जब हम आशा के बारे में बात करते हैं, यह एक ऐसी बात है जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली है. What is the hope of the church? क्या है कलीसिया की आशा? Anybody? कोई भी बता सकते हैं अगर तो. What do you hope for? क्या आप आशा करते हैं अपने जीवन में? Okay, good. Any other? Looking for a new venue. Yeah, that's our hope right now. Yes. Beyond this, anything? इसके अलावा कुछ और? Beyond it. This all. Yes, exactly. That is our hope. और हाँ, सचमुच में यह एक हमारी आशा है. We are our hope and are looking forward is for the coming of our Lord Jesus Christ. और हमारी जो आशा है जिसकी ओर हम ताकते हैं, देखते हैं, वह है कि हमारे यीशु मसीह का दूसरा आगमन. This is what I want to ask you, each of you. मैं यही आप सब से पूछना चाहता हूँ. Do you eagerly wait for the coming of Christ? क्या आप आंखें लगाए बैठे हैं उस परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए? The early church had this prayer always. और जो कलीसिया जो थी जब शुरुआत हुई थी, उनकी यही प्रार्थना थी हमेशा. They greeted each other, Maranatha. और वह एक दूसरे को मिलते थे यह शब्द कह के कि मारनाथा. The meaning was Jesus come soon. और इसका जो मतलब था वह था कि यीशु जल्दी वापस आए. They were expecting that Jesus would come the next day or the very moment. और वह इस बात की आशा रखते थे, इस बात की अपेक्षा करते थे कि मसीह जो है वह कल आए या अगले क्षण में आ जाए. And because of that, what did they do? They sold their belongings and divided among the poor. और इस वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और गरीब व्यक्तियों में आपस में बांट ली. See, what is all this wealth if Jesus is coming now? और क्या यह सब कुछ है? क्या यह सारा पैसा है? क्या ये सारी दौलत है अगर मसीह अभी आने वाला है तो? But actually, is the church now awaiting Christ's return? Are we expecting Christ's return? परंतु क्या अब कलीसिया सचमुच में मसीह के उस
दूसरे आगमन का इंतजार कर रही है, क्या हम उस दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं? It seems that Christ will not come in the next 50, 60 years. It's, the plans and the things that we do are in that manner. और ऐसा लग रहा है कि हम इस बात को सोच रहे हैं कि मसीह अभी अगले 50-60 साल तक तो आने वाले नहीं है, इसलिए जो योजनाएं हम बना रहे हैं वह उसी प्रकार से बना रहे हैं. Or sometimes even we might say, but in our mind, Lord, not today. I have this thing to happen, this thing to do, not today, Lord, please. कई बार हम शायद अपने मुखों से कह सकते हैं कि हाँ आज, परंतु फिर हमारे मन में ऐसा होता है, प्रभु आज नहीं, आज शायद ये करना है, आज ना वो कार्य, आज नहीं आना. See, but this should be a longing for Him. Is that the longing that we have in our heart? परंतु यह एक हमारी अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, यह एक हमारे अंदर हमारे उसकी और एक हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु तू आए, यह हमारी एक अंदरूनी मन की इच्छा होनी चाहिए. This is what in Titus Paul mentions about the glorious and blessed hope that we have. और तीतुस इस बारे में यह लिखता है उस अद्भुत और प्राकर्मी आशा के बारे में जो हमारे पास है. He mentions about the glorious and the visible and blessed appearance of our great God and Savior Jesus Christ. और वह इस बारे में हमें बताता है कि कितना अद्भुत, कितनी प्राकर्मी और कितनी महिमा से भरी होगी वह दूसरे आगमन हमारे मसीह यीशु की. This is something that we have to pray. और यह एक ऐसी बात है जिसके लिए हम सबको प्रार्थना करनी है. Lord, come soon. वह है कि यीशु जल्दी आ. And not just praying. और यह सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी है. If you pray, अगर आप प्रार्थना करें, you will go out to reach out to the lost. और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं इसका मतलब है आप बाहर जाएंगे और उन भटके लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएंगे. See, throughout history, we see those people who have prayed, God has sent them out for missions. और अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो वह लोग जिन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन लोगों को भेजा उसके कार्य के लिए. We are the fruits of the Moravian missionaries here and they had prayed for 100 years. और हम लोग जो है मोरेवियन मिनिस्ट्रीज के एक फल हैं जिन्होंने 100 वर्षों तक प्रार्थना की. And many here in Dehradun, up in the hills, and many places where people would have not dared to go, they had come earlier. और कई ऐसी जगह यहाँ देहरादून में पहाड़ों पर ऐसी जगहें जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था जाने का, वह लोग आए बहुत समय पहले और उन्हें सुसमाचार फैलाया. I was part of a prayer group in our seminary in Kerala. और मैं एक प्रार्थना सभा का हिस्सा था केरला में. In our seminary, we used to gather. It was just the students who were gathering every Tuesday to pray for the Bible translation ministry. और मैं उस समूह का हिस्सा था. सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे हम सब मिला करते थे हर एक मंगलवार को और प्रार्थना करते थे बाइबल के अनुवाद के लिए. And most of us who had come for the prayer meetings God has sent us out. और जितने भी लोग उस प्रार्थना सभा में आए थे उनमें से ज्यादातर लोग परमेश्वर ने हम सबको उसकी सेवा के लिए भेजा है बाहर. Almost across organizations there are about 50 or 60 graduates from Faith Theological Seminary who are in the Bible translation ministry now. वाह, प्रेज़ गॉड. कि उस सेमिनरी में से हर एक कम से कम 40-50 ऐसे विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे जो अलग अलग संगठनों में जाके अब बाइबल के अनुवाद के ऊपर कार्य कर रहे हैं. See, God gives us the burden and He is the one who sends us out. और परमेश्वर हमारे लिए एक बोझ देता है हमारे हृदय पर और वही है जो हमें बाहर भेजता है उस बात के लिए. And the desire of going out is to enhance the coming of our Lord as early as possible. और हमारे बाहर जाने की जो इच्छा है उसका मतलब यह है, उसकी हमारी मर्जी यह है कि परमेश्वर जल्द से जल्द वापस आए और हम उसके लिए तैयारी कर सकें. There are in India
there are about more than 600 languages in India itself. और सिर्फ हिंदुस्तान में 600 से ज्यादा भाषाएं हैं. And still, every time we do the survey, we find out that there are more languages that are out there. और हर बार जब भी हम सर्वे करते हैं हमें पता चलता है कि वहां पर अभी और भाषाएं हैं जिनमें शायद बाइबल की जरूरत है. And we see now it's close to 100 languages that are still remaining. और अभी भी अगर हम देखें तो वहां पर कुछ 100 भाषाएं ऐसी हैं जहां पर अभी जरूरत है उस कार्य की. And in the whole world, about more than 7,000 languages and more than 2,000 languages still need the word of God in their mother tongue. और पूरे संसार में अभी 7,000 से ज्यादा भाषाएं और अभी भी आप कह सकते हैं कि 2,000 से ज्यादा भाषाएं ऐसी हैं जिनमें परमेश्वर के वचन का अनुवाद करना बाकी है. Our hope is on the appearing of our Lord, great God and Savior Jesus Christ. और हमारी आशा जो है वह उस मसीह पर लगी हुई है, हमारे मसीह पर जो यीशु मसीह है जो हमारा उद्धार करता है. But there are multitudes out there who still do not have this hope of His coming. परंतु अभी भी वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस आशा के बारे में नहीं पता है जो वापस आने वाली है. Can we sit here comfortably and say that we are waiting for Him? क्या हम आराम से यहाँ पर बैठकर इस बात को कह सकते हैं कि हाँ हम उसका इंतजार कर रहे हैं? We enjoy these benefits. हम इन सब बातों का लुत्फ उठाते हैं. And that comes with a responsibility. परंतु यह एक जिम्मेदारी के साथ आती है. We are called to go out. हमें बुलाया गया है कि हम जाएं. My prayer is that this church becomes empty because of missionaries going out. और मेरी प्रार्थना यह है कि ये कलीसिया खाली हो जाए क्योंकि इस कलीसिया से बहुत ज्यादा मिशनरीज बाहर जाने पाए. That means people will be coming more. जिसका मतलब है कि और लोग वापस आ रहे होंगे. And many more will go out. और फिर और लोग बाहर जाएंगे. And many more will come in. और फिर बहुत से अंदर आएंगे. And we are not just limited to this building or this area. We are part of the global church. And our responsibility is to the global church, the bride of Christ. And we are awaiting for His appearance. और यहाँ हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इस कलीसिया तक नहीं है, हमारी प्रार्थना सिर्फ इस शहर तक नहीं है, परंतु हम उस संसारिक कलीसिया का एक हिस्सा है जो बड़ी कलीसिया है. हमारी जिम्मेदारी उसकी ओर है जो सचमुच में मसीह की जो दुल्हन है जिसके लिए मसीह वापस आने वाला है. Hallelujah. Hallelujah. And secondly, our hope is the redemption of our bodies. और जो दूसरी हमारी आशा है वह यह है कि हमारे शरीर का एक नया किया जाना. We all have pain in our bodies. हम सब के शरीर में दर्द है. But even the creation is longing for redemption. और हम सब यहाँ तक कि ये पूरी रचना जो है वह अपने सुधार के लिए कराती है. Romans 8:18-25. I'm not reading it. You can note it down and go back and read. This is the redemption of our body that we are longing for. और रोमियो 8 उसका 18-25. उसका 18 से 25 तक हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, आप घर जाके इसे पढ़ सकते हैं. परंतु यही वह इच्छा है जो इसके बारे में हमारा शरीर पूरी रचना जो है वह करा रही है कि परमेश्वर का दूसरा आगमन हो. When somebody dies, we don't cry like the others. और जब कोई मरता है हम दूसरों की तरह इतना नहीं रोते हैं. Why? क्यों? Because we know that there is something beyond all of this. क्योंकि हमें पता है कि इन सब बातों के परे भी एक बात है. We have a hope. हम जो है आशा है. And that our bodies will be resurrected. और वह है कि हमारी जो शरीर है वह फिर से पुनरुत्थानित किया जाएगा. We will not be limited to that 6 feet soil. और हम शायद उस 6 फीट के गड्ढे के तक सीमित नहीं रहेंगे. We have a life beyond all of this. हमारा एक जीवन है इन सब बातों से आगे. And that is in Christ we have this hope. और वह है कि यीशु मसीह में हमारे पास वह आशा है. Hallelujah. Hallelujah. And we have a third hope
the righteousness, the consummation of our righteousness in Christ. और हमारी जो तीसरी आशा है वह है हमारी पवित्र यीशु मसीह में हमारी धार्मिकता। Galatians 5 verse 5 and 6. गलातियों 5 और उसका 5 और 6। गलतियों की किताब उसका 5 और 6। But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope. For in Christ neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressed itself through love. 5वीं आयत, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। See, we see about the freedom. Paul is speaking about the freedom in Christ in this passage. और अगर हम देखें पौलुस यहाँ पर आज़ादी के बारे में बता रहे हैं, मसीह में जो हमारी आज़ादी है उसके बारे में बता रहा है। Our consummation or our hope of our righteousness is not on the things that we do. और हमारी जो धार्मिकता है या हमारी धार्मिकता की जो आशा है वह उस बात पे नहीं टिकी है जो हम करते हैं, हमारे कार्यों पे नहीं टिकी है। See, we believe that it is by faith that we have been saved. और हम इस बात पर विश्वास करते हैं, हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि हाँ, हमारे विश्वास के द्वारा हम बचाए गए हैं। But over time it seems that we move to the things that we do. परंतु समय के साथ हमें ऐसा लगता है कि हम उन चीजों पर अपना ध्यान लगा देते हैं जो हम कर रहे होते हैं। And we feel, oh, I need to do more to please God. और फिर हमें ऐसा लगता है, अरे मुझे और करने की जरूरत है परमेश्वर को मनाने के लिए। That's not the truth. यह सच्चाई नहीं है। It's by faith that we are saved. और यह है कि हम आशा के द्वारा, यह हम है कि विश्वास के द्वारा हम बचाए गए हैं। And because I'm saved, I'm doing all these good things. और क्योंकि मैं बचाया गया हूं, मैं यह सारे अच्छे कार्यों को करता हूं। It's just an outpouring of the faith that the Lord has put in my life. और यह जो है एक बस उंडेला जाना है उन सब बातों का जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखी है, डाली है। There's one Hindi song which normally when somebody sings, I keep quiet. I don't sing that. और वहां पर एक हिंदी गीत है जो जब सब लोग गा रहे होते हैं मैं उसको नहीं गाता हूँ। गैर यीशु को बनना चाहे कुछ करके दिखाना होगा। और दैट इज कि यीशु के अगर बनना चाहो तो कुछ करके दिखाना चाहोगा। If you want to be called towards God, you have to do something. Actually, when we look at the whole song, it's okay, but that 2 verses, no. और अगर हम पूरा गाना देखें तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा गाना है, परंतु यह 2 लाइनें जो हैं वह मुझे सही नहीं लगती। Do we have to कुछ करके दिखाना चाहिए कि? क्या हमें कुछ करके दिखाना चाहिए? Do we have to prove something to the Lord? Nothing. We can't. कुछ नहीं, क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं ऐसा। Everything that we do or what we are is just rags, all worthless things that we do. और कोई भी चीज जो हम करें या जो भी चीजें हम कर सकते हैं वह मसीह के सामने मैले चितलों के समान है। So we can't do anything on our own righteousness. तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी धार्मिकता से। And it's only by the righteousness of Christ that we stand. और यह सिर्फ मसीह की धार्मिकता है जिसके द्वारा हम खड़े रहते हैं। And that is what we are asked to wear. और वही हमें पहनाया जाता है या हमें बोला गया है पहनने के लिए। That is the righteousness that we put on. और वही धार्मिकता है जिसको हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं। And finally, our hope is in the glory of God. और जो आखिरी बात है वह यह है कि हमारी आशा जो है वह परमेश्वर की महिमा में है। Romans 5 verse 1 to 5. रोमियो 5 उसका 1 से 5। It mentions about the things about the glory of God that is revealed through our hope in Him.
और यह उन सब बातों के बारे में, उस महिमा के बारे में दर्शाती है, बताती है, जो हमारे अंदर है मसीह के द्वारा। I'll read it for you. Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have obtained access to the grace in which we stand, and we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us. और रोमियो 5 उसका 1 से 5 तक, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। See, what do we boast in? I like that Hindi, घमंड करना. घमंड इन कलेश, महिमा, विश्वास के कारण अनुग्रह जिसमें हम अपने परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। We hope in the glory of God. We boast. So, because of the suffering, we are not limited to that. And because of all what we experience in Him, we can boast in the hope. और हम उस आशा पर, उस परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हम अपने उन कलेशों पर ध्यान ना दें, परंतु उससे जो धीरज उत्पन्न होता है, उससे जो परमेश्वर की बातें उत्पन्न होती हैं, उस पर घमंड करें। See, the glory of God is not something simple. और जो परमेश्वर की महिमा है वह कुछ ऐसे बहुत साधारण सी चीज नहीं है। See, when we do the translation, this is one word that if you ask anybody, can you explain about glory, people start waving their hands. और एक या ऐसा शब्द है, जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं तो हम किसी अगर कहते हैं कि अगर क्या तुम महिमा के बारे में बता सकते हो, तो लोग अपने हाथ ऐसे वेव करने लग जाते हैं, हिलाने लग जाते हैं। Because there are multiple meanings to it. It is mighty, honor, so many things और embedded in that. क्योंकि उसके बहुत से मतलब हैं, शब्द हैं। कई लोग उसको महानता बोलते हैं, कई लोग उसको पराक्रमी कहते हैं, और उसके बहुत अलग अलग शब्द हैं। In different contexts, it has different meanings. और अलग अलग संदर्भ में इसके अलग अलग मतलब होता है। But this is what we are hoping for. We don't know exactly what it is, but it is something beyond us. और इस बात पर हम आशा रख रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये क्या है, परंतु हमें यह जरूर पता है कि ये हमारी समझ से बढ़कर, समझ से परे है। And it is a sure hope in Christ Jesus. और यहाँ एक सिद्ध आशा है, पुष्ट आशा है, जो मसीह में हमारी है। The other thing is the glory of God fills our heart with joy. और जो अगली बात है वह यह है कि परमेश्वर की यह महिमा हमारा हृदय आनंद से भर देती है। Why are we happy when the glory of God, knowing about the glory of God? Why are we so joyful? और क्यों हम इतने खुश हैं, क्यों हम इतने आनंद से भरे हुए हैं जब हम परमेश्वर की महिमा के बारे में सुनते हैं या जानते हैं? I am happy, or we should be happy
because I'm going to share in the glory of God. और मैं खुश हूँ, या हम सबको खुश होना चाहिए क्योंकि हम इस महिमा में परमेश्वर के साथ सहभागी हैं। How do I know it? कैसे मैं इस बात को जानूं? I am justified by faith. मैं उस विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, And I live in peace with God. और मैं मसीह के साथ शांति में जीता हूँ, And I stand to enter through the grace of God. और मैं खड़ा हूँ कि मैं उसके अनुग्रह के द्वारा चल सकूं, या उसके अनुग्रह के द्वारा प्रवेश कर सकूं उसकी महिमा में। And as we are living in this, living this life of this hope, a life filled with hope, what are the fruits that are expected from our lives? और जब हम इस आशा में जी रहे हैं, जब हम इस आशा में जीवित हैं या चलते हैं, क्या है वह फल जिनकी मैं अपेक्षा रखता हूँ? My time is running out. I'll just mention this. Each of these in itself is a sermon. और मेरा समय अभी खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इन सब बातों को सिर्फ मेंशन करूंगा, इनका नाम लूंगा, क्योंकि हर एक शब्द जो मैं अभी कहने वाला हूँ वो अपने आप में एक प्रचार है। Joy. पहला है आनंद। Romans 12 verse 11 and 12. रोमियो 12 उसका 11 और 12। We have this joy in us. हमारे अंदर यह आनंद भरा हुआ है, And it just cannot be contained in us और यह सिर्फ हमारे अंदर नहीं रखा जा सकता, because of the hope that we have in Christ. और क्योंकि उस आशा की वजह से जो है हमारे पास मसीह यीशु में। When people see our face, they ask, why are you so joyful? और जब लोग हमारा चेहरा देखें, वो यह कहते हैं कि क्यों तुम इतने आनंद से भरे हुए हो। We can't explain it to them, but it is so evident on our faces. और हम उस बात को शायद उन्हें बता ना सके, समझा ना सके, परंतु यह सबको दिखता है। And they are drawn to Christ because of in troubles, and when we are going through difficult situations, we are overflowing with joy and people are drawn to Christ. और क्योंकि जब हम अपनी इन मुश्किल परिस्थिति से होकर जाते हैं और इस आनंद से भरे हुए होते हैं, तो हम लोगों को मसीह की ओर खींचते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्यों यह व्यक्ति इतना आनंदित है। And this is because of the hope that we have in Christ. और यह उस वजह से है, किस बात से है, या इस वजह से है कि उस आशा की वजह से जो हमारी मसीह यीशु में है। It is a decision that we take that we will be joyful in the और Lord. यह एक चुनाव है जो हम लेते हैं अपने जीवन में कि हाँ, मैं आनंदित रहूंगा इस बात में। And it is a command for us to be joyful. और यह एक आज्ञा है हमारे लिए कि हमें आनंदित रहना है। And the second thing, let me just rush forward. The fruits of hope is love. और जो दूसरी बात जिससे हम देखेंगे वह यह है कि आशा का एक और फल होता है प्रेम। Colossians 1 verse 2 to 5. कुलूसियों 1 उसका 2 से 5 तक। And 1 Corinthians 13, the chapter of love, it explains all about the expressions of love. और पहला कुरिन्थियों 13 जो प्रेम का एक अध्याय है, जो प्रेम के बारे में हर एक बात बताता है, उसके क्या क्या रूप होते हैं उस बारे में बताता है। As sinners, we are not able to love others. और पापी होने की वजह से हम दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते हैं। It is in ourselves, we are not lovable people. और हमारे मनुष्य होने के नाते हमारे चरित्र में हम शायद प्रेम के योग्य नहीं हैं। But then when the love of God just fills us, we are able to love others. परंतु जब फिर परमेश्वर का प्रेम हमें भरता है, हम दूसरों को प्रेम कर पाते हैं। We love not because of something that is perishable here. और हम प्रेम रखते हैं इस वजह से नहीं कि कोई उस बात की वजह से नहीं कि कुछ ऐसी चीज जो अभी शायद नष्ट हो जाए। We are hoping for something imperishable that is beyond us, beyond this world. परंतु हमें कि ऐसी बात का पे आशा रखते हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जो हमारी समझ से परे है। And therefore we are able to even love our enemies. और इसी वजह से हम अपने शत्रु से भी प्रेम रख पाते हैं। And thirdly,
The third fruit of hope is boldness. और जो तीसरा फल है आशा का वह है बोल्डनेस। 2 Corinthians 3 verse 12. दूसरा कुरिन्थियों का 3 उसका 12 अध्याय। I'm not, see, because of, the disciples, they were the most fearful people. They were running away from everything. But then, when they had the hope that came to them, and the Holy Spirit that brought them out, they were bold enough to stand firm and then speak the word of God to all of us with boldness. और अगर हम देखें जो चेले हैं वह पहले डर से बहुत भरे हुए थे, परंतु फिर उनके जीवन में जब पवित्र आत्मा आई और क्योंकि उनके पास मसीह की आशा थी, वह जाकर निडर होकर परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा पाए। See, I am not a bold person. मैं एक निडर व्यक्ति नहीं हूँ। I didn't want to move out of my comfort zones. मैं अपने उस आरामदायक जगह से नहीं निकलना चाहता था। But then God pushed me out. परंतु फिर परमेश्वर ने मुझे धक्का लगाया बाहर। His love just poured out through my life. और उसका प्रेम जो है वह मेरे जीवन से उंडेला गया। And I was made bold in Him. और मैं उसमें निडर बनाया गया। And also the fourth aspect, the fourth fruit as a result of hope is endurance. और जो एस्पेक्ट है, जो चौथा जो फल है वह है एंड्योरेंस, सहनशीलता। थैंक यू। We are able to endure suffering because of what is before us, the hope that He has set before us. और हम जो हैं उस बात को सह पाते हैं, उस कष्ट को सह पाते हैं जो हमारे सामने है, क्योंकि हमारे पास वह आशा है। And our hope is not on the things that we get. और हमारी आशा उन बातों पर नहीं है जो हमें मिलती हैं। Our hope is on a God who has delivered us. और हमारी आशा उस परमेश्वर पर है जिसने हमें पहले से छुटकारा दे दिया है। And therefore, my dear brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. 1 Corinthians 15 verse 58. This is my prayer for you, for us. 1 Corinthians 15 verse 58. पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58वीं आयत। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और यही मेरी प्रार्थना है आज हम सब के लिए। God has given us a living hope. परमेश्वर ने हमें एक जीवित आशा दी है आज। And we are called to live in that. और हमें बुलाया गया है कि हम जीवित हों उस आशा में। We are not to live in a fantasy world. हम एक मनगढ़ंत दुनिया में विश्वास ना रखें। We are living our life in this world with this hope, so that people who see us will be drawn to live this living hope. और हम लोग इस जीवन में बुलाए गए हैं ताकि हम जीवित रहें इस आशा में, और ताकि जो लोग हमें देखते हैं इस आशा में जीवित, वह हमारी ओर प्रभावित हों, आकर्षित हों। And may the Lord enable us to live this living hope, live this life with this hope that we have received from Him. और प्रभु हमें इस योग्य बनाए कि हम इस आशा में जीवित रहें, उस जीवन की आशा में हमेशा भरपूर रहें और चलते रहें। May God bless us through these words. परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा।